everyone, welcome to iExamB. I'm Neha, your law faculty at iExamB's Legal B. Today in this video, I'll be discussing about some of the important aspects with respect to the various competitive exams. कुछ ऐसे queries students के होते हैं जो कि किसी भी competitive exam में अगर वो appear करने वाले हैं, they have with respect to those exams. So I'll be catering all those queries of the student through this video. But before that, do remember to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. अगर आपको कोई भी questions or queries हो तो आप हमें contact कर सकते हो either through the email ID or the phone number which is displayed on the screen. इसके अलावा you can go apart from this, you can go ahead and visit our website wherein you will get the details with respect to the various competitive exams, all the information with respect to those exams, and many other things which will help you to prepare for your exams in a better way. Stay tuned and stay updated. So as I was already mentioning कि इस particular video में मैं आज discuss करने वाली हूँ how to prepare for various competitive law exams and basically कैसे पढ़ना है इन सभी तरीके के different type of exams के अलावा what my focus is actually to bring to you all the various areas from the various acts which you need to study for these competitive exams. So basically how to prepare for the various competitive law exams and what to study from the various acts is what lot of queries we have been receiving with respect to this. So इस वीडियो में मैं कुछ aspects discuss करने वाली हूँ जो कि common है with respect to the various competitive exams as competitive law exams as I have already mentioned. उसके अलावा we are going to start a series with respect to providing you the various aspects or the various provisions under different acts, various acts which are important for the various competitive exams, चाहे वो कोई भी हो exam हो, ठीक है? तो इन सब चीजों से related इस वीडियो में मैं कुछ discussion करूंगी and then we'll be coming up with the series of the important sections. So do remember to stay tuned and stay updated. यहाँ पे एक्चुअली जो है स्टूडेंट्स का बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें कि आपको सिलेबस मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको सिलेबस नहीं प्रिस्क्राइब होता है. उस केस में देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विच मेनी स्टूडेंट्स दे फेस. How to go about the preparation, what to do, what not to do, where to start, बहुत सारे questions हैं और इसीलिए we at iExamB's Legal B, we are there to help you out, to guide you in your each step of preparation for the various competitive exams. So Legal B has 3 expert legal faculties who are there to help you, to guide you with respect to these competitive exams. So in case if you want the guidance, if you want a way of how to go ahead, you can connect with us anytime as we are there to help you out at each step of your preparation. जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास डिफाइंड सिलेबस होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पे कि नहीं होता है. आप यहाँ पे ही लिस्ट देख सकते हो. सबसे पहले जैसा मैंने मेंशन किया है ECGC PO लीगल का एग्जाम जो कि हमारा 15 जुलाई का है, जिसका कि एग्जाम हमारा 15 जुलाई को है. क्या ECGC ने कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस दिया है? नो, द आंसर इज नो. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके लिए क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, क्योंकि लॉ इज अ वास्ट सब्जेक्ट. इट्स नॉट अ just one topic or one subject or anything as such which you just pick up and you are done with it. लॉ बहुत ही वास्ट है, हम सभी को पता है. तो कहाँ शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, ये बात हमें अपने प्रिपरेशन में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है और इन्हीं चीजों से रिलेटेड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ. अगर हम पहले फर्दर देखें तो RBI का ग्रेड बी का जो लीगल का एग्जाम हमारा 23 जुलाई 2023 को है, क्या वहां सिलेबस प्रिस्क्राइब है? तो यस है. DDA लीगल असिस्टेंट का जिसका अगस्त सितंबर में है, वहां पे सिलेबस है, यस. तो जहां पे सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है फिर भी स्टूडेंट्स आर इन अ बेटर पोजिशन बिकॉज दे कैन मेक आउट एग्जैक्टली क्या पढ़ना है.
बट वहां पे भी एक क्वेश्चन और डाउट आता है कि वो जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है वो भी काफी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि प्रिस्क्राइब किया हुआ तो इट्स जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ एक्ट्स एंड ऑल विच वी हैव टू स्टडी। इट इज अगेन अ वास्ट और an n number of acts which we have to cover up। तो exactly वहां भी ये क्वेश्चन आता है कि कैसे करें, क्या करें, उन चीजों में सबसे जरूरी क्या है, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू गो अहेड एंड प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। अगर हम बात करें IBPS RRB स्केल 2 की, तो इसका एग्जाम 10 सितंबर को है और यहाँ भी हमारे सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है। सेम गोज विद IBPS SO लॉ। सेबी का और GIC लीगल का हमारा सिलेबस प्रिस्क्राइब है। तो चाहे सिलेबस प्रिस्क्राइब हो या ना हो, ये कंफ्यूजन आती ही है। However, if the syllabus is prescribed, still it is a little better than the ones which are not being defined or there is no prescribed syllabus। ठीक है, सो इन चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इट इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए आपको एक स्टडी प्लान, एक स्ट्रैटेजी की किस तरीके से आप एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आपने मंथ वाइज, डे वाइज, जो भी आपके पास वीक वाइज अगर आपने डिवाइड करके रखा है, इट इज वेरी इजी टू गो अहेड एंड स्टडी। अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग हाउ टू प्रोसीड अहेड। तो इसके लिए आपको एक स्टडी प्लान और स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। देन बेयर एक्ट का रीडिंग इज अ मैंडेटरी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप अपियर करने वाले हो तो बेयर एक्ट की रीडिंग मैंडेटरी है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरियस provisions of law as it has been laid down in the Bare Acts। So Bare Act reading must है। Bare Act बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, so उसके लिए Bare Act की थरो रीडिंग जरूरी है। बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स, जो बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स होता है, चाहे आप इनमें से कोई भी एग्जाम ले लो या इनके अलावा एग्जाम्स ले लो, वहां पे बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स आपके आते ही हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, CPC, IPC, ये सारे बहुत बेसिक कॉमन लॉज है जो हम अपने ग्रेजुएशन में LLB में पढ़ते हैं। तो ये बेसिक लॉज जो है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, तो आपको अगेन थरो होना है इस बेसिक लॉज से। देन आ जाता है आपका डोमेन या सेक्टर स्पेसिफिक लॉज या सब्जेक्ट्स, बेसिकली आप कह लो, जहां पे कि अच्छा अगर ECGC का एग्जाम है तो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्ट जो है वो हमें पढ़ना होगा, अगर GIC का है तो इंश्योरेंस रिलेटेड होना चाहिए, RBI का है तो के सम फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड एस्पेक्ट्स वी हैव टू कवर। सो उस तरीके से डोमेन स्पेसिफिक फिर हम देखेंगे, बट कॉमन सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड होना चाहिए पहला। देन रिविजन बहुत जरूरी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे इट विल नॉट बी ऑफ दैट ग्रेट वैल्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। मॉक टेस्ट हम बार बार आपको बोलते हैं कि बार बार यही बोलते हैं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्यों अटेम्प्ट करना जरूरी है? क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपको एक एग्जाम लाइक सिचुएशन में, कंडीशन में, विद द सेम number of questions, time, everything, pattern, it has been given to you based on the previous year questions and all। तो जितना आप अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज सब कुछ पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज लैकिंग बिकॉज ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग द required number or not attempting the mock test, so you have to attempt that। next, अब इन सब चीजों का मैंने बात कर लिया। अब फिर भी एज अ स्टूडेंट हमें लगता है कि एग्जैक्टली अच्छा स्टडी प्लान बनाना है, हमें पढ़ना है Bare Acts एंड ऑल, बट कैसे स्टार्ट करें, क्या किन चीजों को पहले कवर करें, किन चीजों को बाद में कवर करें, कैसे पढ़ें। अगेन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये लिस्ट दे दिया कि ये सारी चीजें आप करोगे, इट्स एज सिंपल एंड यू कैन गो अहेड एंड डू। Again, many are in such a position that they easily know what they have to do and they go ahead and do it, but there are again a few chunk of students जहां पे कि उनको फिर भी चाहिए होता है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हमने स्टडी भी करना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, एंड देन स्टडी भी प्लान भी बनाना है एंड ऑल। सो फॉर देयर वी एट लीगल बी, iExamBees लीगल बी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एट एवरी स्टेप। तो आप देख सकते हो, आप लीगल बी चैनल एक डेडिकेटेड लॉ
एग्जामिनेशंस के लिए ये पर्टिकुलर चैनल है आई एग्जाम बी का, जहां पे कि अगर आप विजिट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, किस रिस्पेक्ट में है। पहला आप देख सकते हो कंटेंट बेस्ड है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो ऑनगोइंग है, जो लेटेस्ट है लॉ में हैपनिंग्स, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, डिस्कशंस मिलेगा। देन आपको वेरियस मॉक टेस्ट के में जो क्वेश्चंस होते हैं, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस बेसिकली सीरीज हमने स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो मॉक टेस्ट सीरीज 62, सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 62 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन किस पर्टिकुलर एक्ट से आ सकता है। यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंड इसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सरफेसी एक्ट, एवरी एक्ट हैज वी हैव ट्राइड एंड कवर्ड। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, डे वाइज स्टडी प्लान। वी नॉट ओनली जस्ट प्रोवाइड यू द कंटेंट, द मॉक टेस्ट, बट वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू कि आप कैसे अपने प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को बनाएं, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज प्लान बनाएं। बिकॉज एग्जाम के लिए जब हम अपियर होने वाले हैं तो एक एक डे, एक एक मिनट काउंट करता है, तो वी हैव टू मेक आवर बेस्ट, we have to make the best utilization of that time. Next आप यहाँ देख सकते हो हमने previous year vacancies, cut off trends, ये भी students का जानना बहुत जरूरी होता है और हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो स्टूडेंट के मन में क्वेरीज हो सकते हैं while going ahead and preparing for the competitive exams, whether it be with respect to content, MTs, strategy या फिर cut off trends and all, हम उन सबको केटर करते हैं हमारे लीगल बी चैनल के लिए। सो यू कैन गो हेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग ऑल दीज गाइडेंसेस, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा लीगल बी चैनल पे ऑलरेडी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंट सेक्शंस टू स्टडी फ्रॉम द इंश्योरेंस लॉ, ट्रेड लॉज एंड कस्टम्स लॉ। दिस वाज बेसिकली स्पेसिफिकली केटरिंग टू द ईसीजीसी पीओ लीगल एग्जाम, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डोमेन स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक लॉज भी हमें पढ़ने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक लॉज। तो यहाँ पे जब हमने देखा ईसीजीसी पीओ से रिलेटेड एग्जाम हमारा 15th of July को है, so we know that students have the common concern और query कि इंश्योरेंस लॉज में से, ट्रेड लॉज में, कस्टम लॉज में से कौन से वैसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हमें पढ़ना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए जिन पे, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली कमिंग फ्रॉम those areas is more as compared to the other areas। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था। अगेन आप इस वीडियोस को हमारे लीगल बी चैनल पे देख सकते हो। अब जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू स्टडी फ्रॉम द वेरियस लॉज, whether it be the basic laws or domain specific laws. We will be coming up with all the sections which are important in those particular लॉज। अगेन मेंशनिंग ओवर हियर कि चाहे वो बेसिक लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो स्पेसिफिक लॉज हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो या वो सरफेसी एक्ट हो, हम इन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो आपको कवर करना चाहिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, हम ऐसे सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली आपको आपके लिए एक कन्वीनियंट वे होगा टू गो अहेड एंड प्रोसीड फॉर योर प्रिपरेशंस। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ixambe.com, जहां पे कि आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप देख सकते हो लॉ एग्जाम सेक्शन है यहाँ। दीज आर सम ऑफ द फ्री मॉक टेस्ट विच वी प्रोवाइड टू यू। अदर्स ऑल्सो यू कैन गो इन दिस फ्री मॉक टेस्ट सेक्शन एंड यू कैन find many other law exams with many other free mock tests with respect to various competitive exams। तो mock test already जैसा मैंने आपको बताया it is very important to attempt the mock test। so आपको यहाँ पे हम free mock test basically provide कर रहे हैं। you can avail the opportunity by going and visiting to our website and by attempting these mock tests। okay, so hope it was useful for you, but do remember to subscribe to the channel and stay tuned because अब हम आने वाले हैं अपने नए सीरीज के साथ जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं all the important aspects to be covered in various
laws, as I already mentioned, whether it be basic or domain specific laws. Stay tuned and stay updated.